Hello everyone. Am I audible? Hello, Manchu. Yes, Yes, you are. man. Hello. Yes, sir, you are audible. Very good evening to all. Good evening. So guys, today we have to start unit second, which is about the assessment of personality. So as in this course, BPCC 103, which is all about your individual differences. So we have already learned about the individual differences, what are the nature, concept and aspects. Then we came to know about the personality and the aspects of personality. And later we have learned about some theories of personality given by the different psychologists. So in second unit, so we will now learn about the assessment of personality. So assessment of personality basically means, so now we will perform some types of assessment which will describe the type of the personality for the particular individual. So अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, पता चल गया हमें कि what is personality and what are the concepts of personality and theories क्या क्या होती है personality की. Now this is the advanced level where we will apply those theories, or you can say the different aspects, to identify the personality of a different individual. ठीक है, तो हम पता करेंगे कि किस किस इंडिविजुअल की पर्सनालिटी किस कैटेगरी में लाई करती है एंड किसकी क्या पर्सनालिटी है, किसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके नेचर के या फिर उसके बिहेवियर के. सो दैट वी विल कम टू नो अबाउट आफ्टर द असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी. ठीक है, तो असेसमेंट जैसे आपको पता ही होगा, सेम वर्ड है, सेम मीनिंग है. जैसे हम असेसमेंट एग्जाम्स में जैसे टीचर्स लगाते थे, असेसमेंट होता है कि मतलब आपका टेस्ट लगा लो इसको, एक काइंड ऑफ टेस्ट. और इन साइकोलॉजी असेसमेंट मींस it is a method to identify or to measure the personality for the particular individual. So in assessment of personality, we have the introduction part, then there is a concept of psychological assessments and the properties of good test and the ethics of psychological assessment. Then we have its uses, what are the uses of personality assessment, and later we have some methods of personality assessment. So क्या क्या methods होते हैं personality assessment के लिए. So like we have observation, interviews, personality in inventories, rating scales, behavioral data and situational test and projective techniques. So these are the methods which we use to identify the personality for particular individual. ठीक है, तो ये जो मेथड्स हैं असेसमेंट है, इनमें क्या है, वो सारी थ्योरीज इंक्लूडेड रहती है और उन थ्योरीज के बेसिस पे हम कुछ क्राइटेरिया बनाते हैं, कुछ कैटेगरीज बनाते हैं कि इफ दैट इंडिविजुअल विल क्या कहते हैं उसके अगर इतने स्कोर आते हैं या फिर अगर वो अकॉर्डिंग टू हिज बिहेवियर, हिज और हर बिहेवियर, वो कौन सी कैटेगरी में लाई करेगा. ठीक है, तो ये सब हम पता करते हैं पर्सनैलिटी असेसमेंट से. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मूव टू द इंट्रोडक्शन पार्ट which is about your personality assessment. So personality assessment, it is our behavior, social interaction and relationship are to a great extent influenced by our personality. Hence it is a crucial to know and assess our personality to understand its implication in different aspects of our life. क्योंकि personality क्या होती है, हमारे behavior और हमारा social interaction कैसा है, हमारी relationship कैसी है, इसको क्या करता है, influence करती है personality. तो हमें पता होना चाहिए कि पर्सनैलिटी हम कैसे असेस करेंगे या फिर कैसे असेसमेंट करेंगे पर्सनैलिटी की, टू अंडरस्टैंड इट्स इम्प्लीकेशंस, कि भाई इसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में. ठीक है, तो ये हम इसके अंदर लर्न करेंगे असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी के अंदर. सो इसका फायदा क्या होता है, सबसे बड़ा फायदा ये होता है, अगर मैं असेसमेंट करूंगा पर्सनैलिटी से तो मैं क्या कर पाऊंगा, सो दैट वी कैन यूज दिस मेथड टू डेवलप, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है टू डेवलप या फिर मॉडिफाई और इम्प्रूव आवर पर्सनैलिटी फॉर ग्रेटर इफेक्टिवनेस इन आवर फंक्शनिंग. ठीक है, असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी इज अ मेजर एरिया ऑफ रिसर्च एंड डिफरेंट थ्योरीज हैव इन्फ्लुएंस्ड द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी असेसमेंट. The way personality is conceptualized by various theories has an implications on the way personality is assessed. So basically means कि ये important part है कि इसका फायदा क्या होता है, what are the benefits of assessment of personality. So assessment of personality is very you can say important for us in order to modify or in order to
इन ऑर्डर टू क्या कहते हैं डेवलप कि मेरा बिहेवियर क्या है। सपोज मैंने अपना पर्सनालिटी असेसमेंट कराया है एंड आई केम टू नो कि मेरे अंदर जो ये क्वालिटीज हैं, मेरा जो बिहेवियर है, इसमें कुछ चीज लैक कर रही है, जिसकी वजह से मैं एक चीज को अचीव नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये मुझे पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? मेरे पर्सनालिटी असेसमेंट से मुझे पता चलेगा। सपोज कि मैंने असेसमेंट दिया है, उसमें मेरी कुछ जो क्वालिटीज हैं वो सही नहीं है अकॉर्डिंग टू माई अचीवमेंट, की मैं जो मैं अचीव करना चाहता हूँ। तो ये बेनिफिट हो गया कि मुझे पता चल गया मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं, या मुझे किस पर्सनैलिटी की कैटेगरी के अंदर जाना पड़ेगा ये चीज अचीव करने के लिए। ठीक है, तो मुझे ये पता चलेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ? आई कैन मॉडिफाई माई सेल्फ, आई कैन, और यू कैन से आई कैन मॉडिफाई द बिहेवियर एस्पेक्ट in myself, and I can develop some different behavior or the different personality in order to achieve, or you can say in order to improve our personality for greater effectiveness in the function, in the functioning. तो ये हमारा सबसे मेन बेनिफिट होता है। इसको बहुत जगह यूज किया जाता है, आगे आएगा टॉपिक कहाँ कहाँ इसको यूज किया जाता है। सो so why do we need to assess personality and how is it going to help us? कि कैसे हम personality test करते हैं and ये हमें कैसे help करती है, किन किन areas में हमें help करेगी, तो ये सब हम सीखेंगे इस present unit में। So then the next topic is concept of psychological assessment. So what is the concept of psychological assessment? तो concept जो मैं बता रहा हूँ वही सब इसके अंदर लिखा हुआ है। So let me go through with this. Okay, so how do we know that the personality characteristics of people, हम कैसे identify करते हैं, and how do we measure individual differences? ठीक है, तो हम कैसे measure करेंगे? So as we know, individual differences in their interest, aptitude, achievement, as well as intelligence, moods, motives, and personality. तो क्या करते हैं? ये concept के अंदर पढ़ रहे हैं psychological assessment क्या होती है? Because as we know, the individuals are different from each other in the aspects of interest, aptitude, achievement, or you can say intelligence, moods, motives and personality. ये सब क्या होती है? हमारे डिफरेंट होती है, जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल को डिफर करती है एक दूसरे से। ठीक है, तो जो असेसमेंट होगा, असेसमेंट पे हम क्या करेंगे? असेसमेंट पे हम यही सब जो एस्पेक्ट्स हैं, पर्सनालिटी के जो एस्पेक्ट्स हैं, इन्हीं को हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि एक इंटेलिजेंस फैक्टर आपके अंदर कितना है, मूड्स आपके अंदर कैसे हैं, मोटिव्स आपके कैसे हैं, व्हाट इज योर पर्सनालिटी एंड व्हाट इज योर अचीवमेंट एंड व्हाट आर द एप्टीट्यूड्स इन द पर्टिकुलर इंडिविजुअल। तो ये सब हम पता करेंगे एक असेसमेंट के अंदर, जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट हमारा होता है। ठीक है, so this psychological assessment or measurement of individual differences follow a systematic procedure. तो यहाँ पे क्या होता है? जो assessment होता है psychological जो personality test करने का, उसमें क्या होता है? एक systematic procedure होता है। ठीक है, systematic procedure होगा पता करने के लिए कि किस particular individual की personality कहाँ lie कर रही है और उसमें क्या-क्या modification चाहिए, या फिर किसी भी use के लिए। So why psychological assessment is important? तो ये हमने पढ़ ही लिया। इट एम्स एट मेजरिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट बिहेवियर। तो ये क्या करता है? इसका एम रहता है मेजर करना अलग अलग चीजों का ह्यूमन बिहेवियर, कि हमारे अंदर ह्यूमन बिहेवियर क्या है और हमारे अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे हो सकती है उस बिहेवियर को लेके। तो ये मुझे कैसे पता चलेगा? जब मैं टेस्ट करूंगा, राइट? कि अब मुझे नहीं पता चलेगा ना, सपोज मैं किसी पर्सन से फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ, सो मुझे कैसे पता चलेगा कि उसकी पर्सनैलिटी क्या है या उसका बिहेवियर क्या है, व्हाट आर द थिंकिंग प्रोसेस and what are the motives, intelligence and the feelings and the moods, मुझे नहीं पता चलेगा। So in order to know this characteristics, in order to know the personality, what I will do, I will go for the assessment of that personality। ठीक है, मैं एक assessment करूंगा उस particular person पे जिससे मैं first time meet कर रहा हूँ। अगर मैं assessment करूंगा, then I will follow a systematic procedure where I will take that person to a particular ये प्रोसीजर, जहाँ पे मैं कुछ कुछ चीजें फॉलो कराऊंगा, उससे कुछ कुछ टास्क मैं उसे बोलूंगा करने के लिए कि इन दिस मेथड यू हैव टू कंप्लीट दिस टास्क, एंड एज पर द रिजल्ट्स और एज पर द रिस्पॉन्सेज बाय हिज और हर, मैं पता करूंगा कि उसकी पर्सनैलिटी क्या है, व्हाट इज द बिहेवियर फॉर दैट इंडिविजुअल, राइट? तो आपने देखा होगा बहुत सारे सर्वे होते हैं। ठीक है, तो सर्वे भी किस लिए होते हैं? इसी इन सब चीजों के रिगार्डिंग ही होते हैं सर्वे, आपने देखा होगा। तो कहीं भी आप सर्वे फिल करते हो तो क्या पता चलता है? हमारे आइडियाज पता चलते हैं कि मैं कैसा हूँ। ठीक है, कि मेरा बिहेवियर क्या है। जिस जिस टाइप से मैं क्वेश्चंस का आंसर करूंगा, तो सेकंड पर्सन को पता चल जाएगा कि हाँ, इस बंदे का ये इंटेंशन है, इसका ये बिहेवियर है। ठीक है, तो ये सब हो गया हमारा इसका कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा? सो देन
सो यहाँ पे हमारे पास कुछ दिया हुआ है कि प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट व्हिच नीड टू बी फॉलोड व्हाइल मेकिंग यूज ऑफ द वेरियस असेसमेंट. सो एज वी हैव लर्नड दैट साइकोलॉजिकल असेसमेंट शुड फॉलो अ सिस्टमैटिक प्रोसीजर. यहाँ पे सिस्टमैटिक प्रोसीजर हमें फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है, ऐसे ही नहीं है कि मैं कुछ भी कहूंगा और उसको असेसमेंट बना दूंगा या मैं अपने हिसाब से कुछ भी टेस्ट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा. एक मुझे पर्टिकुलर पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए, साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एक मुझे असेसमेंट करना पड़ेगा, जो क्या होगा, एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर होगा. कि वहां पे कुछ कुछ प्रोसीजर होंगे कि स्टेप 1 आई हैव टू फॉलो दिस, आफ्टर दिस आई हैव टू फॉलो स्टेप 2 या फिर मेथड 2, जो भी हमें होगा. मतलब कहने का मतलब है कि सिस्टमैटिक प्रोसीजर होगा, तभी मैं एक कंक्लूजन पे आ पाऊंगा. तो सिस्टमैटिक मैंने बताया प्रोसीजर होता है, तो यहाँ पे कुछ कुछ चीजें होंगी जिस पे मुझे ध्यान देना पड़ेगा, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी किसी भी पर्सनैलिटी असेसमेंट के लिए. सो फर्स्ट वी हैव हियर द कम्प्रिहेंसिव एंड होलिस्टिक. यहाँ पे फर्स्ट चीज है कि कम्प्रिहेंसिव और होलिस्टिक होना चाहिए. इसका मतलब क्या है? all the relevant aspects need to be taken into account, integrating all aspects of the individual's life, the socio the soc s- yes, the socio-cultural context of the individual need to be considered. तो यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि मैं कोई भी असेसमेंट करूंगा किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सारे एस्पेक्ट्स को कंसिडर करना पड़ेगा. मैं ऐसा नहीं कर सकता कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के कुछ एस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, कुछ खराब है, तो मैं उसको नेग्लेक्ट कर दूंगा. नहीं. या फिर कुछ खराब है और बाकी सब अच्छे हैं, तो मैं खराब वाले को मैं ज्यादा वो इंपॉर्टेंस दूंगा, अच्छे वालों को मैं इग्नोर कर दूंगा. This is not comes under this assessment of personality. I have to be comprehensive and holistic about the assessment for that personality, where I need to counter all the relevant aspects एंड ऑल्सो द इंडिविजुअल्स लाइफ, कि इंडिविजुअल की लाइफ कैसे है, उसकी सोशो कल्चर कैसा है उसका, तो इन सबको कंसिडर करूंगा मैं. ये मेरा मेन रूल है. आप इसको रूल मान के चलो कि ऐसा मुझे करना ही पड़ेगा एक असेसमेंट के लिए. Then we have systematic part. D is your systematic. So assessment is a systematic process. It involves planning as to what and how and why to assess. ठीक है, तो systematic मतलब तो पता ही चल गया होगा मीनिंग, कि systematic ढंग से होगा ये, ऐसा नहीं है कि कुछ भी प्रोसीजर चल रहा है. So in systematic procedure we have to know before like performing any kind of assessment of personality. We must know like why I am doing this, and what are the reasons, and why I am going to access this person, you assess this person. ठीक है, तो मुझे पता होना चाहिए सब चीजें, तभी मैं उसका प्रोसीजर फॉलो करूंगा, तभी मैं उस पे असेसमेंट पे आऊंगा. मुझे पता होना चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ, रीजन क्या है, और क्या कहते हैं कैसे मैं करूंगा. तो वो सब एक सिस्टमैटिक तरीके से होता है यहाँ पे. देन द नेक्स्ट इज योर ऑनगोइंग. In ongoing, psychological assessment is not a one time activity. Ongoing का मतलब क्या हो गया, कि one time activity नहीं है. It needs to be an ongoing assessment to capture the dynamic nature of the human behavior. So it means कि जैसे देखो personality होती है, मैंने बताया था personality is a डायनामिक इन नेचर. डायनामिक मीन्स कि किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की पर्सनालिटी विल नॉट रिमेन कांस्टेंट, बिकॉज एज पर द एटमॉस्फेयर, एज पर द सोशल इंटरेक्शन, एज पर द मेंटल प्रोसेस, मेरी जो पर्सनालिटी है, मेरा जो बिहेवियर है, मेरा जो मेंटल प्रोसेस है, दिस इज नॉट स्टैटिक. ये हमेशा चेंज होता रहता है. सो इसलिए ये क्या होता है, असेसमेंट क्या होता है, एक ऑन गोइंग प्रोसेस होता है हमेशा भी. कभी मैं ये नहीं कह सकता, सपोज कि मैंने आज कोई असेसमेंट कराया अपनी पर्सनैलिटी के रिगार्डिंग, तो असेसमेंट कराया, मेरे को एक सर्टिफिकेट मिला और मैंने वो सर्टिफिकेट रख लिया, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 10 साल बाद भी अगर मैं वो सर्टिफिकेट दिखाऊंगा, तो वो मेरे को आइडेंटिफाई, वो मेरे को डिस्क्राइब करेगा. नहीं, जो मैंने आज असेसमेंट कराया है, जो मेरा रिजल्ट आया है, क्या पता 10 साल बाद कुछ और आ जाए, क्योंकि ये हमेशा डायनामिक होता है, फिक्स तो रहेगा नहीं. डेफिनेटली देयर विल बी सम चेंज इन माय बिहेवियर, right? And once there is a change in a behavior, definitely my personality will be different. तो ये क्या होता है, ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, कभी भी स्टैटिक नहीं होता, हमेशा बार बार करना पड़ता है इसको. देन देयर इज एक्यूरेट. So next is your accuracy and the confidential. So accuracy means assessment should be accurate in terms of accessing what it intend to measure, and reliability and validity should be ensured. तो ये next में भी आएगा क्या क्या प्रोसीजर होता है. तो accurate का मतलब होता है reliability and validity. Reliability का मतलब क्या हो गया, कि ऐसा अटेस्ट होना चाहिए जिसपे वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल रिलाय कर सके. रिलाय कैसे कर सके, सपोज कि यहाँ पे मार्केट में अगर मैं कहूँ कि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं, आपके दिल्ली में सपोज 100 साइकोलॉजिस्ट हैं जो असेसमेंट करवाते हैं पर्सनालिटी का, तो रिलायबल कैसे होना चाहिए, सपोज उन 100 में से आपने एक डॉक्टर से अपना असेसमेंट करवाया, एंड देयर यू विल गेट योर स्कोर्स, सपोज 8 आउट ऑफ 10.
ठीक है, आपको वहां पे स्कोर्स मिल गए या कुछ भी जैसे भी मेजर करते हैं, वी विल लर्न हाउ वी विल मेजर ऑन डिफरेंट स्केल्स एंड क्या क्या इसमें क्या प्रोसीजर होता है। तो सपोज आप मान के चलो कि आपको स्कोर मिला है 10 to 8, तो रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल मीन्स कि एक डॉक्टर ने मेरे को स्कोर दे दिया 8 out of 10, तो दूसरे डॉक्टर के पास जाऊंगा या मैं सबके पास जाऊंगा तो सब जगह मेरे को एक ही स्कोर मिलेगा, क्योंकि ये सब क्या है, सेम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। सपोज करो कि एक डॉक्टर ने मेरे को 8 out of 10 दे दी, दूसरा मेरे को बोल रहा है कि नहीं यू आर 9 out of 10, एक ने कह दिया नॉट यू आर 5 out of 10, तो रिलायबिलिटी कहाँ है? रिलायबिलिटी तो है ही नहीं। मैं किस पे बिलीव करूंगा? मैं किसी पे बिलीव नहीं कर सकता, क्योंकि सब जगह अलग अलग रिजल्ट आ रहा है। सो द बेसिक मीनिंग ऑफ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी अंडर एक्यूरेट थिंग, कि जो भी मैं टेस्ट करा रहा हूँ वो क्या होना चाहिए? रिलायबल होना चाहिए, ताकि सब एक ही होना चाहिए। मतलब कहीं से भी मैं टेस्ट कर रहा हूँ तो मेरा एक ही टाइप का रिजल्ट आना चाहिए। सो दैट कम्स अंडर एक्यूरेसी। एंड द नेक्स्ट थिंग इज कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल मीन्स finding of assessment should be kept confidential. The individual client need to be ensured about it. So what does it mean? It means कि जो भी मैं assessment करवा रहा हूँ अपनी personality का, so it must be confidential. ठीक है, तो कोई भी डॉक्टर आप होगा जो भी असेसमेंट करेगा पर्सनालिटी का, ही नीड्स टू मेक श्योर दैट ही विल उसको लीक नहीं करेगा। अंडर प्राइवेसी और सिक्योरिटी पॉलिसीज यू कैन से द फाइल और द रिजल्ट्स ऑफ द असेसमेंट शुड बी कॉन्फिडेंशियल, दैट विल नॉट बी शेयर्ड विद एनीवन। तो ये हम यहाँ पे कंपलसरी कुछ क्या होते हैं, चीजें होती है जो हमें ध्यान रखनी पड़ती है असेसमेंट के, जब भी हम कोई असेसमेंट करते हैं, साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स करते हैं। तो ये आपको पता चल गया। आई होप टिल नाउ एवरीथिंग इज क्लियर। इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरीज, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर देम। एनीवन? नो। नो डाउट? समझ में आ रहा है? हाँ जी। तुम्हारे अलावा बाकी सब सो गए? नहीं नहीं आ रहा है समझ आ रहा है। आ रहा है भैया, आ रहा है। ओके देन गुड। सो द नेक्स्ट टर्म इज, हमारे पास यहाँ पे है कि टू टाइप्स उन्होंने दे दी, कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो यहाँ पे दो चीज आएंगी। देखो, वी हैव हियर वी नीड टू डिफरेंशिएट बिटवीन साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट। अब क्या होता है, जो नॉर्मल जो लोग यूज करते हैं ना, जैसे आप नॉर्मली बात करेंगे, अभी तो हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, सो वी नो मोर देन एनीवन एल्स रिगार्डिंग द टर्मिनोलॉजी, कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट क्या होगा पर्टिकुलर, और साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अगर नहीं नॉलेज होगी तो मैं क्या करूंगा, मैं असेसमेंट भी बोल दूंगा या फिर मैं टेस्ट भी बोल दूंगा। तो ऐसा नहीं होता है। जैसे ही इसमें यहाँ पे इन्होंने बताया गया है कि नॉर्मली लोग कुछ भी बोल देते हैं, असेसमेंट को भी टेस्ट बोल देते हैं, टेस्ट को भी असेसमेंट बोल देते हैं, बट वी नीड टू मेक श्योर कि दोनों में डिफरेंस क्या क्या होते हैं। सो डिफरेंस ये होते हैं गाइज, साइकोलॉजिकल असेसमेंट क्या होता है, एक पूरा प्रोसीजर होता है जिसमें हम डिटेल में पता करते हैं किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में। ठीक है, अलग 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 एस्पेक्ट्स में पता करते हैं। ठीक है, अलग अलग एस्पेक्ट में मैं पूरा उसका पर्सनैलिटी को जानने की कोशिश करूंगा। मतलब ये लेंथी होता है, बहुत बड़ा होता है, बहुत प्रोसीजर होता है। बट इन साइकोलॉजिकल टेस्ट में क्या होता है, एक नॉर्मल टेस्ट होता है किसी भी एक एस्पेक्ट्स को लेके। ठीक है, कि एक नॉर्मल टेस्ट होगा जिसके अंदर आपकी सारी क्वालिटीज, या मैं कहूँ कि पूरा आपके डिटेल में आपके बारे में नहीं पता चलेगा, बट एक टेस्ट के अंदर आपके कुछ चीजों के बारे में पता चलेगा। एक टेस्ट क्या होता है कि आपको कुछ भी टेस्ट करवाएंगे, उसमें कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे जैसे आप आंसर करोगे वैसे वैसे आपको स्कोर मिलता रहेगा, और अकॉर्डिंग टू द टोटल स्कोर दे विल क्या आपका रिजल्ट देंगे, उसका टेस्ट का रिजल्ट देंगे। तो टेस्ट में बेसिकली आपका एक छोटा टेस्ट होता है जिसमें जो लेंथी नहीं होता है, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्क्राइब नहीं करेगा। लेकिन असेसमेंट क्या होता है, ये पूरा प्रोसीजर होता है, पूरा बड़ा प्रोसीजर होता है, जिसमें हम हर एक चीज के बारे में जानते हैं या कोशिश करते हैं इंडिविजुअल के जानने के बारे में। सो दिस आर द बेसिक डिफरेंस। मतलब असेसमेंट जो है वो यूपीएससी है और जो टेस्ट है वो बोर्ड है। टेस्ट है वो बोर्ड है, मतलब है दोनों एक ही चीज। दोनों चीज हमें क्या बता रही है, हाँ। बिहेवियर बताएगी इंडिविजुअल के बारे में। लेकिन जो असेसमेंट है ये डिटेल में बताएगी पूरा, वो लेकिन डीप जो नॉलेज टेस्ट है वो एक ठीक है। शॉर्ट होता है। ठीक है, ओके। और यहाँ पे देखा इन्होंने मेंशन किया हुआ है, असेसमेंट रेफर्स टू ब्रॉड इवैल्यूएशन। ठीक है, यहाँ पे देखो टर्मिनोलॉजी, असेसमेंट रेफर्स टू द ब्रॉड इवैल्यूएशन ऑफ एन इंडिविजुअल व्हिच में इंक्लूड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। ठीक है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग प्लस सर्वे प्लस ऑब्जर्वेशन प्लस इंटरव्यू प्लस हिस्ट्री प्लस डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन ऑफ द क्लाइंट। ये सब आ गई किसके अंदर, हमारी असेसमेंट के अंदर। बट इफ वी टॉक अबाउट योर
टेस्ट, लेट मी सी, टेस्ट के बारे में भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया होगा। Yes. So यहाँ पे देखो, after scoring the correct and incorrect responses, then psychological comes to a conclusion where the respondent client on whom the test is conducted fits into the fixed criteria based on the scores or not. तो यहाँ पे देखो टेस्ट क्या होता है। टेस्ट में यहाँ पे साइकोलॉजिकल टेस्ट इज एन ऑब्जेक्टिव टूल ऑफ असेसमेंट। ये क्या हो जाता है, असेसमेंट का एक टूल है, एक पार्ट है जो क्या करता है, मेजर करता है। इट प्रोवाइड्स यूनिफॉर्म वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टेस्ट इन इंस्ट्रक्शन एंड स्कोरिंग बेस्ड ऑन ए प्री डिफाइंड करेक्ट एंड इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो जैसे आपने देखा नहीं होगा, यूट्यूब पे वीडियोस आती हैं कि चलो आईक्यू, आपका अपना आईक्यू पता करो, ठीक है। देखा भी होगा आपने कई बार, अपना आईक्यू पता करो, एक अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे, आप आंसर करते रहोगे, जैसे जैसे आप आंसर करोगे आपका एक रिजल्ट आ जाएगा परसेंटेज में। आई होप सबने ट्राई किया होगा एक दो बार तो ठीक है। तो वो जो सब चीजें होती हैं वो होता है हमारा साइकोलॉजी टेस्ट। तो क्या होता है उसमें, प्री डिफाइंड आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके आंसर्स प्री डिफाइंड होते हैं, और उनके रिस्पॉन्सेज की आपने अगर ए बी सी डी में से अगर ए आंसर दिया तो आपका स्कोर 50% होगा, 70% होगा। ऐसे करके आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और एट द एंड जो आपका टोटल स्कोर होगा उसके बेसिस पे आपको बताया जाएगा कि आपका ये बिहेवियर है। तो ये क्या है, तो शॉर्ट हो गया, इसमें फिर भी हम गारंटी नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये हो गया साइकोलॉजिकल टेस्ट, जो एक टूल है असेसमेंट का। लेकिन असेसमेंट में क्या होता है, असेसमेंट में सारी चीजें होती हैं, ऑब्जर्वेशन होगी, टेस्टिंग भी होगी, सर्वे भी होंगे, इंटरव्यू भी होगा, आपका आपकी हिस्ट्री भी देखी जाएगी, और आपकी डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन के बारे में पता करेंगे। तो सब चीजों का पता करके फिर जो आपका बिहेवियर जो डिस्क्राइब होगा वो आपका आ जाएगा साइकोलॉजिकल असेसमेंट के अंदर। एंड इन दिस यूनिट 2 वी विल लर्न अबाउट असेसमेंट, वी विल नॉट लर्न अबाउट Excuse टेस्ट। me, sir. यस। Yeah, what is the guarantee that our mind state will be continuously the same? It might differ from different stages, right? Exactly. That is why it is When dynamic. will we activate? That's what I said. It's dynamic. It can't be you can static, right? It will change in the different situation, in the different societies, in the different atmosphere. So that's why the behavior will never be static. It will always dynamic. Thank you. Okay, guys. So ये हो गया हमारा basic difference here. तो इसके बाद क्या है, properties of a good test. ठीक है, तो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं गुड टेस्ट की, कि हमें कोई असेसमेंट करना है, टेस्ट करना है पर्सनालिटी के रिगार्डिंग, तो वहां पे प्रॉपर्टीज क्या होंगी, क्या क्या चीजें वहां पे होनी चाहिए, कि मैं कहूंगा कि ये जो टेस्ट मैंने किया है ये एक गुड टेस्ट है। मतलब यहाँ पे मैंने पूरा प्रोसीजर फॉलो किया है, सिस्टमैटिक प्रोसीजर फॉलो किया है, मैं ये कह सकता हूँ। तो वहां पे क्या क्या चीजें होनी चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, नॉर्म्स होने चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, वैलिडिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें होनी चाहिए टेस्ट के अंदर, ये सब चीजें होंगी तो वो हमारा टेस्ट क्या होगा, गुड टेस्ट होगा। सो इन स्टैंडर्डाइजेशन में मैंने वही कहा कि एक ही प्रोसीजर होना चाहिए जिसको सब फॉलो करें, सो दैट ये क्या हो जाएगा, स्टैंडर्डाइजेशन हो जाएगा उसका। सपोज मैंने एक डॉक्टर से टेस्ट कराया, तो अगर वो उसने जो प्रोसीजर फॉलो किया और दूसरा डॉक्टर अगर अलग प्रोसीजर फॉलो कर रहा है, तो दैट मींस कि ये दोनों स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, इन दोनों के अंदर अलग अलग प्रोसीजर हो गया। तो स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, मतलब अगर मैं कहूं कि मेरे पास असेसमेंट ए है, किसी टेस्ट का नाम मैंने रख दिया ए असेसमेंट, तो ए असेसमेंट कोई भी डॉक्टर करेगा तो वो सेम प्रोसीजर फॉलो करेगा जो डिफाइंड है, प्री डिफाइंड है। देन ओनली आई कैन से कि ये स्टैंडर्डाइजेशन है, क्योंकि मैं कहीं भी चला जाऊं अगर मैं ये टेस्ट कराऊंगा तो सिमिलर आएगा सब जगह। सो दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। इफ यू वांट आई कैन read this as well. So it will refer to the uniformity. So uniformity मतलब uniqueness in administration of the test and scoring and the इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेस्ट रिस्पॉन्सेज। तो यही चीज आ गई ना, देखो आपकी यूनिफॉर्म होना चाहिए, मतलब एक ही होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए आपका जो टेस्ट हुआ है वो, आपकी जो स्कोरिंग है वो, और जो इंटरप्रिटेशन होंगे उसके रिस्पॉन्सेज के। तो ये क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, तभी वो स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर आएगा। एंड व्हाट इज द नॉर्म्स, the second is our norms क्या होता है, refers to the score obtained by the respective sample on which the test was developed initially. This test norm provide information about high, low or average performance. This score of an individual taking the test later on are compared with these norms or standards to identify the relative standing of the individual. Okay. तो यहाँ पे क्या कह रहा है, norms क्या होते हैं, norms होता है हमारा जो फाइनल रिजल्ट आता है उसको हम बोलते हैं norms, जितनी भी मेरी स्कोरिंग हुई है। तो वो होना चाहिए एक
क्योंकि अगर वो होगा तो उसका बेनिफिट क्या होगा, सपोज मैंने आज टेस्ट कराया है एंड आई गॉट 80% आउट ऑफ 100 और यू कैन से 60% आउट ऑफ 100। सो मैं क्या करूंगा, मैं जो मुझे पता चला कि मेरे अंदर ये क्वालिटीज में कमी है या फिर मैं इन चीजों को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, इफ आई फॉलो दिस इंस्ट्रक्शन और इफ आई change this kind of behavior, this kind of things in my behavior, then I will learn more and my behavior will change and I will shift to a different category of the personality जो मैं चाहता हूं। तो उसमें नॉर्म्स फायदा करेगा, नॉर्म्स बेनिफिट करेगा कैसे, क्योंकि मुझे स्कोरिंग मिल जाएगी। अगर मेरी स्कोरिंग 60% है, सो मुझे ये पता है कि अगर मुझे इंप्रूव करना है तो 60% से ऊपर जाना है, मेरे को साइकोलॉजी समझने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, एज एन मतलब हम तो साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, जो नहीं पढ़ते हैं उनको थोड़ी ना ये सब चीजें समझ में आएंगी या ये सब चीजें पूछने आते हैं आपसे, नहीं पूछने आते। वो बस ये देखेंगे कि मेरे स्कोर, अच्छा मेरा स्कोर 80% आ गया, दैट मीन्स हाँ ठीक है, मेरे लिए बेनिफिट है, मुझे नहीं पता मेरे अंदर क्या है क्या नहीं है, बस मुझे पता चल गया। तो नॉर्म्स बेनिफिट करते हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए, कि अगर मैंने जो आज टेस्ट कराया, जो स्कोरिंग मेरी आ जाई है, तो मैं दोबारा टेस्ट कराऊंगा तो मुझे पता चलेगा कि मैंने इतना इम्प्रूव किया है या इतना मैंने खराब हो गया है मेरा असेसमेंट। तो ये हो गया इसके बाद आता है रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। रिलायबिलिटी वैलिडिटी आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। ठीक है, सो आफ्टर दिस we have some ethics of the psychological assessment, कि psychological assessments के ethics क्या होते हैं। ethics होती हैं ethics क्या होती हैं, ethics का हिंदी मीनिंग, लिटरल मीनिंग किसी को पता है? वैसे मैं ethics होती है कि हमें नीतियाँ क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए मतलब जो अच्छे काम होते हैं उसको बोलते हैं ethics, जो courtesy नीतियाँ जिसे हम बोलते हैं courtesy। ठीक है, Do's तो and don'ts. यस, तो पर्टिकुलर एकदम एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग तो भाई पता नहीं है, लेकिन हाँ एथिक्स मतलब होता है आचार जो नीति। आचार नीति। ओके, आचार नीति तो नहीं है ना भाई चलो ठीक है। सो एथिक्स में मतलब कि हमें क्या क्या चीजें, जो रूल होंगे, जो सही रूल होते हैं, मतलब वो फॉलो करने चाहिए। एथिक्स क्या क्या होते हैं साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स की, जैसे एथिक्स के अंदर आएगी, अगर मैं डॉक्टर हूँ, अगर मैं असेसमेंट्स करता हूँ बट किसी भी इंडिविजुअल के, सो अकॉर्डिंग टू एथिक्स आई विल नॉट शेयर एनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ माई क्लाइंट टू एनीवन एल्स, सो दैट कम्स अंडर एथिक्स। अगर मैं इंफॉर्मेशन शेयर कर दूंगा उसकी, तो क्या हो जाएगा, बहुत उसको नुकसान हो जाएगा, ये मैं नहीं कर सकता। तो ये मेरी एथिक्स है। एथिक्स होगी साइकोलॉजिकल असेसमेंट के अंदर कि मुझे जो भी मेरे पास क्लाइंट आएगा, जो भी मैं किसी का भी असेसमेंट करूंगा, आई विल नॉट शेयर हिज और हर परफॉर्मेंस और स्कोर टू एनीवन एल्स। ठीक है, तो यहाँ पे एथिक्स है, एथिक्स के अंदर वी विल ओके। सो in ethics of psychological assessments, so here we have American Psychological Association। सो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एथिक्स को डिस्क्राइब किया था, उन्होंने कुछ पॉइंट्स किए थे, गाइडलाइंस दी थी कि ये इस गाइडलाइंस क्या करनी पड़ेगी, सबको फॉलो करनी पड़ेगी in order to perform any kind of assessments regarding psychology, or you can say personality. So all the doctors and all the psychologists, they have to follow some guidelines। ठीक है, तो गाइडलाइंस क्या क्या है, सो यहाँ पे गाइडलाइंस है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट शुड बी डन बाय ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट ओनली। ठीक है, बहुत इजी है, देखो समझ में आ रहा होगा कि ये जो साइकोलॉजी असेसमेंट है, ये सिर्फ ट्रेन जो पर्सन है, जिसने इसमें पढ़ाई की है, जिसने जो ट्रेंड है इसमें, ठीक है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स में, ओनली दैट पर्सन कैन परफॉर्म दिस असेसमेंट। ठीक है, और उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। अब जिसने पढ़ाई नहीं करी है तो असेसमेंट करने बैठ जाए, वही मतलब जैसे डॉक्टर होते हैं कि झोला झोला छाप डॉक्टर बोलते हैं, मैंने थोड़े दिन पहले देखा था। ठीक है, तो वैसा काम यहाँ पे नहीं चलेगा कि मतलब नॉलेज मेरे को है लेकिन मेरे पास डिग्री नहीं है, मैंने पढ़ा नहीं है लेकिन मुझे फिर भी पता है, तो वो चीज यहाँ पे कंसिडर नहीं की जाएगी। तो आपको एक ट्रेन्ड पर्सन होना चाहिए उसके असेसमेंट के लिए, देन ओनली यू कैन परफॉर्म। सेकंड इज, इट इज अनएथिकल टू यूज अ साइकोलॉजिस्ट टेस्ट विदाउट हैविंग अ फॉर्मल डिग्री एंड ट्रेनिंग ऑफ द सेम। सो यहीं पे क्या हो जाएगा, अनएथिकल हो जाएगा कि मेरे पास डिग्री नहीं है, मेरे पास ट्रेनिंग नहीं है, फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, ये असेसमेंट परफॉर्म कर रहा हूँ। सो इट इज unethical, so we will always avoid this। So the psychologist should know about the test, its administration, scoring and interpretation procedure। ये पूरा पता होना चाहिए जो भी उसका असेसमेंट परफॉर्म कर रहा है। तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, द क्लाइंट शुड बी ब्रीफ्ड अबाउट द इंटेंट एंड द यूज ऑफ द टेस्ट बिफोर कंडक्शन ऑफ एनी साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, जो क्लाइंट हमारा होगा, जो डॉक्टर का क्लाइंट होगा, ही शुड बी इन्फॉर्म्ड अर्लियर अबाउट द
intent. So what is the intent behind performing this assessment and what is the use of the test. ठीक है, तो पहले कंडक्ट करने से पहले, असेसमेंट करने से पहले मैं उसको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसे ऐसे हमारे असेसमेंट होते हैं और ऐसे ऐसे आपका जो रिजल्ट आएगा आपको इससे ये बेनिफिट होगा, आप इसमें आपको ये सब चीजें पता चलेंगी आपकी पर्सनैलिटी के रिगार्डिंग, आपकी जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो आपको पता चलेंगे। तो जो भी प्रोसीजर होगा मुझे पहले एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर मैं इसको आपको बताऊं जैसे भी डॉक्टर्स होते हैं, अगर कोई भी अगर आप ऑपरेशन कराओगे ना किसी का, आप कभी देखा हो ऑपरेशन वगैरह कराते हैं, तो पहले डॉक्टर के साथ एक मीटिंग होती है, ठीक है, जो भी जैसे फैमिली पर्सन होता है, जो मेन पर्सन होता है, उसके साथ डॉक्टर की एक मीटिंग होती है। ही विल एक्सप्लेन एवरीथिंग कि आई एम गोइंग टू परफॉर्म दिस काइंड ऑफ operation on this person and this will be the this may be the consequences हो सकती हैं इस ऑपरेशन के अंदर। तो वो सारी चीजें पहले डिस्क्राइब करेगा, एक्सप्लेन करेगा, उसके बाद एक फॉर्म साइन करवाएगा, देन ही विल गो फॉर दैट ऑपरेशन और यू कैन से असेसमेंट। तो ये चीजें क्या होती है हमें पहले से बतानी पड़ती है अपने पेशेंट को या फिर क्लाइंट को। तो दैट इज ऑल्सो अ गाइडलाइन as per the American Psychological Association. The next guideline we have is the client is also informed about the confidentiality of the test findings. ठीक है, तो client को ये भी हमें बताना होता है डॉक्टर को कि भाई जो भी स्कोर आएगा that will not be shared with anyone. ठीक है, so that is also a guideline. Next, as a psychologist or a researcher, you can also require to provide and report the findings in an unbiased way. Communicating test result in a proper way is an important aspect of psychological assessment. तो ये क्या कह रहा है कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, रिसर्चर होते हैं, you are also required to provide and report the findings in an unbiased way. तो अब देखो ऐसा होता है, डॉक्टर वही वाली बात हो गई, अगर मैं एग्जांपल दूं कि डॉक्टर ने पूछा कि आप डॉक्टर के पास गए, उसने बोला कि आपको बुखार हो गया है, आपको फीवर है, आपने कहा हाँ, तो उसने बोला कि आपको फीवर कैसे हो गया या आपके पेट में दर्द क्यों है, तो आपने बताया नहीं कि मैंने तो कल सारा मैंने ऑयली फूड खाया था, आपने कुछ बताया ही नहीं। अगर आप सही से बताओगे नहीं, अपनी गलती अगर बताओगे नहीं या अपने बारे में सही से बताओगे नहीं, तो असेसमेंट कैसे परफॉर्म होगा। डॉक्टर तब तक आप डॉक्टर को बताओगे नहीं आपकी ये प्रॉब्लम है और इस वजह से हुई है, तो वो कैसे, उसको आइडिया नहीं लगेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा, तो आपको कुछ भी दवाई उठा के दे देगा या आपको कुछ भी रिजल्ट बना के दे देगा। तो द बेसिक आइडिया इज दैट whenever any client or any person approach to the doctor for any assessment of the personality, he must inform all the information about him or her in a अनबायस्ड वे। अनबायस्ड वे मतलब कोई भी उसमें वो नहीं होना चाहिए, पूरी ट्रू इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये भी एक क्या है, गाइडलाइन है। Then the next is, as a psychologist, you need to ensure confidentiality of the client. It is unethical to use or share the psychological test report of the client without their consent. However, there are exceptions to it when there is a risk to the life of the client or the society. तो यहाँ पे देखो वही वाली चीज आ गई कि हम confidentially रखनी पड़ती है, हम इनको नहीं शेयर कर सकते किसी के साथ भी, क्योंकि अगर शेयर करेंगे तो वो नुकसान रहेगा, एक्सेप्शन हो जाएगा, रिस्क हो जाएगा किसी भी क्लाइंट की लाइफ से लेके या सोसाइटी से लेके, इन्होंने लिखा हुआ है ऐसे। Then the next is it is also important to be aware of the test taking situation and the ethnic and the cultural background of the test takers client, as they may affect the test results. तो ये क्या कह रहा है, it is also important to be aware of the test taking situation. ठीक है, कि test taking situation aware होनी चाहिए उससे टेस्ट करने से पहले, उसकी एथनिक एंड कल्चर बैकग्राउंड क्या है जिसपे हम टेस्ट परफॉर्म करने वाले हैं, ताकि उससे टेस्ट रिजल्ट पे इफेक्ट ना करे। ठीक है, जो भी मतलब पहले उसके अलावा उसकी सारी इंफॉर्मेशन हमें लेनी पड़ती है, देन ओनली वी कैन परफॉर्म। अदरवाइज जो टेस्ट आएगा वो सही नहीं आएगा, टेस्ट उसमें कुछ ना कुछ क्या हो जाएंगी, एरर्स हो जाएंगी। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे चीजें थी कुछ। आई होप टिल नाउ एवरीथिंग इज क्लियर। इफ एनीवन हैव एनी डाउट यू मे आस्क। No. No, sir. No, Okay. sir. So the next topic is personality assessments and its uses. So देखो वही वाली बात आ गई घूम फिर के जो मैं हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, पर्सनालिटी असेसमेंट्स, इट्स यूजेस। तो यहाँ पे यूजेस में देखो मैं सब नहीं बताऊंगा, आप खुद कर लेना इसको। ठीक है, यूजेस में इन्होंने बताया हुआ है, मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ वर्बली। सो यूजेस में जैसे मैंने तो बताया कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैंने आपको बताया कि क्या फायदा क्या होता है इसका असेसमेंट का, कि मुझे पता चल जाता है कि ये पर्सन, पर्टिकुलर इंडिविजुअल या मैं खुद, मैं इस कैटेगरी में लाई करता हूँ, एंड आई हैव दिस मच ऑफ नेगेटिव, यू कैन से प्रोज इन माय बिहेवियर एंड दिस आर द कॉन्स इन माय बिहेवियर। ठीक है, तो इसमें मुझे क्या पता चलेगा कि हाउ आई कैन मॉडिफाई,
how I can change my behavior, how I can change the human development also. ठीक है, तो यहाँ पे हेल्प करता है. तो अब किस किस फील्ड में ये सब चीजें हमें हेल्प करेगी, आप सोच के देखो कि ह्यूमन डेवलपमेंट जैसे हमने पहले बात की थी, सोशियोलॉजी में भी आपकी हेल्प करेगी. ठीक है, कि अगर मुझे पता होगा कि यहाँ पे एक सोसाइटी है, इतने सारे लोग रहते हैं और उनका पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट अगर मैंने किया है, तो मुझे स्कोरिंग से मुझे पता चल जाएगा ना कि सोसाइटी के अंदर इस पर्सनैलिटी के लोग रहते हैं. ठीक है, सो आई कैन जो भी फ्यूचरिस्टिक मेरी जो स्कीम्स होंगी, जो भी मेरे को परफॉर्म करना होगा, सो आई विल परफॉर्म अकॉर्डिंगली एज पर द रिजल्ट्स ऑफ द असेसमेंट ऑफ दैट पर्सनैलिटी. तो मतलब यहाँ पे बहुत सारे यूजेस बता रखे हैं. सो लेट मी took random. In clinical use, the personality assessment is reflected in the use of personality test for diagnosis of personality disorder. देखो क्लिनिकल यूज में हमारे यहाँ पे यूज हो गया, क्योंकि अगर मुझे पर्सनालिटी असेसमेंट से अगर मुझे पता होगा किसी पर्सन का, तो मैं क्या करूंगा, उसके पर्सनालिटी डिसऑर्डर को क्या कर सकता हूँ, ठीक कर सकता हूँ, काउंसलिंग उसे प्रोवाइड कर सकता हूँ. ठीक है, पर्सनालिटी असेसमेंट हैज आल्सो बीन वाइडली यूज्ड इन कैरियर डिसीजन. ठीक है, कैरियर डिसीजन में भी पर्सनालिटी असेसमेंट बहुत फायदेमंद होती है, मतलब यूजफुल होती है. एंड इट हैज अ ब्रॉड स्कोप इन स्कूल एंड एजुकेशनल सेटअप. ठीक है, तो पर्सनालिटी असेसमेंट क्या करती है, बहुत ज्यादा स्कोप है